Fine. So let's discuss the 2015 question paper of geography. Can you all see the question paper on your screen? Is it visible to all of you? Yes, sir. Check. So like yesterday, we have seen some of the topics of the geography. In geography, as I told you yesterday also, that there are some core geography questions and there are some applied geography questions. Applied geography questions are asked in environmental studies and they are asked in international relationship or international organization. तो we will try to understand both the types of questions. Question कैसे पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, as well as core geography से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. That's what we'll try to understand. Fine. So question number 5. Is it visible to you? Yes, sir. In the South Atlantic and Southeastern Pacific region, in tropical latitude, cyclone does not originate. What is the reason? So this is a core geography question. कल किसी ने पूछा था कि what is the difference between core geography and applied geography question. तो ये core geography का question है. This question could be solved by reading the fundamentals in physical geography. It can be solved by reading G.C. लियोंग की किताब है. तो उसमें मैंने explain किया था कि we have already discussed that what are cyclones, what are the types of the cyclones, how cyclones are originated, and what is tropical cyclone, what is temperate cyclone, etc. Right? So यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि in the South Atlantic Ocean as well as Southeastern Pacific regions, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते हैं. उसकी वजह कैसे पूछा था. मेजॉरिटी ऑफ दी साइक्लोन्स दे आर डेवलप्ड इन दी north hemisphere only, like China, India, then America. यहाँ पर ये साइक्लोन्स डेवलप होते रहते हैं. साउथ हेमिस्फेयर में, साउथ अटलांटिक ओशन में और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये क्यों नहीं डेवलप होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा है. So reason question options are: sea surface temperatures are low, intertropical convergence seldom occurs, Coriolis force is too weak, or absence of the land in those regions. So again, this question could be solved by only studying the basic concept of geography. The answer of this question is B. That is वहां पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स वहां पर डेवलप नहीं होते हैं, इसकी वजह से वहां पर साइक्लोन डेवलप नहीं होते हैं. तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी क्लास, दैट इज साइक्लोन्स वाले टॉपिक. चलिए, now let's move on to next page. Next question, that which one of the following pairs of the states of India indicates easternmost and westernmost coast? Again, one more map based question. As I told you that before prelims exam of UPSC, you need to study the map of India in detail. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. राइट, मतलब भारताचा पूर्वेकडील सर्वात पूर्वेकडचा राज्य कुठला आहे आणि सर्वात पश्चिमेकडचा राज्य कुठला आहे, असा क्वेश्चन त्यांनी विचारलेला आहे. ऑप्शन्स आर असम अँड राजस्थान. इज इट ट्रू? When you see the map of India, is Assam the easternmost state or Arunachal Pradesh is the easternmost state? Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. So ये Assam wrong है. Rajasthan is also wrong because Rajasthan, although located in the western side, but it is not the westernmost. Gujarat is the westernmost. Am I right? So the answer Yes, of sir. this question is Arunachal Pradesh and the Gujarat. यहाँ पर गुजरात दिया हुआ है, but Assam is wrong. यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, but here Rajasthan is wrong. So correct answer is easternmost state is the Arunachal Pradesh and the westernmost state is Gujarat. The answer of this question is D. It was easy question provided you have studied, you have observed the map of India carefully. Is it clear? अशा प्रकारचे एक दोन प्रश्न भारताच्या मॅपवर आधारित प्रश्न विचारले जातात. ते काय विचारलं जाईल we don't know, but they might ask you question with respect to the map of India. So that is why just before 4-5 days of exam, you need to observe the map of India carefully. Is it clear? अब क्या Yes. देखना है मैप ऑफ इंडिया में, ये आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चल जाएगा. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन मैप, बेस्ड ऑन दैट यू कैन रिवाइज इट. क्या रिवाइज करना है, क्या देखना है, क्या ऑब्जर्व करना है, ये आपको तो भी पता चल जाएगा. तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है. इज इट क्लियर? In yesterday's Yes, sir. PYQ as well, we have seen that there were many such map based questions, but those were world map based question. But here it is India map based question. Clear?
Yes, sir. चलिए, now let's move on to next page. I will be discussing the environmental studies question in after once we have completed the basics of ecology and ecosystem topic. Question number 14. What explains the eastward flow of the equatorial counter current? इक्वेटोरियल लाइक ओशन करंट का ये क्वेश्चन है. इन ओशन करंट इक्वेटर में एक काउंटर करंट डेवलप होता है. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब या व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ऐसे क्वेश्चन पूछा. तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ऑन द वर्ल्ड मैप. तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इसको आप समझ लेंगे. देन वी विल डिस्कस इट इन द बेसिक्स ऑफ इसमें हम डिस्कस करेंगे. Let me show it to you on map of the world. Okay, I need to take a whiteboard. Just give a minute. Okay. Can you all see the map on your screen? Yes, sir. Let's have both India as well as the map is visible to all of you, right, on your screen now? Okay. Yes. So let's come back to question. Question says that what explains the eastward flow of the equatorial counter current. तो एक इक्वेटोरियल में ओशन करंट होता है, वो ईस्टवर्ड फ्लो होता है. सो व्हाट इज द रीजन व्हाई दैट इज ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट. सो इन वर्ल्ड ज्योग्राफी व्हेन आई वाज टेकिंग द फंडामेंटल्स इन फिजिकल ज्योग्राफी, उस समय में हमने इसको डिस्कस किया था. बस इसको एक बार और रिवीजन करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम द मिडल ऑफ अफ्रीका एंड
sorry, this is not equator, this is Tropic of Cancer. Equatorial line passes from here. दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. ओशन करंट जो होते हैं, ओशन करंट्स का नॉर्मल जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर. ओशन करंट फ्लोज लाइक दिस, यहां से ऐसे फ्लो करते हैं, देन ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं. वन ब्रांच मूव्स अपवर्ड्स एंड वन ब्रांच कम्स डाउनवर्ड, राइट. सिमिलरली देयर इज वन मोर ओशन करंट साउथ ऑफ इक्वेटर. इक्वेटर से ऊपर एक होता है और इक्वेटर से नीचे होती, इट मूव्स लाइक दिस एंड ये ऊपर की तरफ चला जाता है. तो दिस इज व्हाट इज the direction of the ocean current. So ocean current topic I will be discussing in detail in fundamental geography, but those who have already attended उनके लिए ये रिवीजन है. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि when these two ocean currents, ये वेस्टवर्ड है. नॉर्मली ओशन करंट यहाँ पे क्या होते हैं, नॉर्थ वेस्टवर्ड जो होते हैं, ये वेस्टवर्ड ओशन करंट होते हैं. बट उसके अलावा देर इज वन स्मॉल करंट जो ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल, मतलब यहाँ पे एक और करंट होता है जो यहां से बीच में इधर मूव करता है, ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल करंट. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ईस्टवर्ड द फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल करंट, ऐसे क्वेश्चन पूछा. सिमिलर सच इक्वेटोरियल करंट इज आल्सो फाउंड हियर एंड सिमिलर सच इक्वेटोरियल करंट इज आल्सो फाउंड हियर. तो दिस इज द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल करंट. तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट. Now the term is used is here is a counter current. Normal current कौन सा है? Normal current is the clockwise direction in north hemisphere and anti-clockwise direction in south hemisphere. But उसके अलावा यहाँ पर एक counter current flow होता है. This is called as equatorial counter current. Same is also here. मतलब here the current flows in this way and it flows in this way. लेकिन उसके बावजूद भी why this equatorial counter currents are created, ये क्वेश्चन पूछा गया. दिस अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ऑप्शंस है द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कल ही के क्लास में हमने डिस्कस किया था, याद है. अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से क्या होता है, apparent movement of the sun towards north and south. You remember that? Yes, sir. सेकंड ऑप्शन है कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स, मतलब ये जो दो इक्वेटोरियल करंट्स हैं, दिस टू इक्वेटोरियल करंट, दिस इक्वेटोरियल करंट यहाँ कन्वर्ज हो जाते हैं. कन्वर्ज होने की वजह से क्या यहाँ से ये ऐसे फ्लो होता है, ये पूछा गया. लास्ट थर्ड ऑप्शन है डिफरेंस इन द सैलिनिटी ऑफ द वाटर और अक्रॉस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर. तो इक्वेटर के पास में काम नियर बेल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज आईटीसीज. कल शायद फरजाना ने इसके बारे में मेंशन किया था. कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द काउंटर करंट होता है? We will study this in basics of geography. We will not find out the answer now. We Sir, will just take. of the two equatorial currents. Sorry. Sir, इसका आंसर convergence of the two equatorial currents. Yes. The answer yes. Farzana, you have attended this class, तो आपको ये आंसर आ रहा है. But the other students who have not attended this, उनके लिए I will be explaining it into the basics of geography. But anyways, you understood Farzana how the questions are asked on core geography. Yes. This is the question of ocean current. So note down the topic. The questions are asked on ocean currents. I will be explaining the ocean current topics in detail when I will be taking the fundamentals and physical geography class for the undergraduate students. But जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, please go and study what are ocean currents. I will be also giving you the notes related to that. Now next है place of pilgrimage and location. This is again application based geography. इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स हैं, वो कौन से हिल्स में लोकेटेड है, ऐसे पूछा गया. श्रीशैलम लोकेटेड इन नल्लामल्ला हिल्स, ओमकारेश्वर लोकेटेड इन सातमला हिल्स एंड पुष्कर इज लोकेटेड इन महादेव हिल्स. पुष्कर, डू यू नो पुष्कर? नाव कभी सुना आपने? पुष्कर में एक इंपॉर्टंट यात्रा भरत असते भारतामध्ये. कुठल्या राज्यामध्ये आहे पुष्कर? एनी आयडिया? इफ यू नो in which state this पुष्कर मेला? अजमेर के आगे है पुष्कर. सॉरी, अजमेर है ना, अजमेर. इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर. बराबर. हाँ, उसके आगे है पुष्कर. ओके. तो फिर कौन से स्टेट में आ गया समझ नहीं. अगर अजमेर के आसपास में है तो इन विच स्टेट इट इज? सर आई थिंक राजस्थान. यस, यू आर राइट. तो पुष्कर इज इन राजस्थान, राइट. तो राजस्थान में कौन से हिल्स है? महादेव हिल्स है राजस्थान में? No, sir, it is in Madhya Pradesh. इट इज इन मध्य प्रदेश.
तो अगर ये मध्य प्रदेश में है तो ये पेयर क्या होगा, रॉन्गली मैच्ड है। पुष्कर महादेव हिल्स जो दिया गया है ये रॉन्गली मैच्ड पेयर है। एम आई राइट? Yes, sir. So if it is wrongly matched, then we can eliminate this option, B option, we can eliminate C option, we can also eliminate the D option. The correct answer of this question is one only. So what was expected in this question? That Pushkar is not located on the Mahadev Hills. Pushkar is located in Rajasthan. तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे अभी समीन ने बताया ना, ऑन हर ऑब्जर्वेशन कि अजमेर को जाते वक्त में, मतलब when we are moving or going towards Ajmer, we मतलब we have a Pushkar, मतलब इस ऑब्जर्वेशन से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. So I always say that it's not necessary that you will find the answer of the UPSC question only from the books. You can solve some of the questions answer by your observation as well. Got it? तो महादेव हिल्स कहाँ है ये आप सभी को पता है, राइट लावण्य? Yes, महादेव sir. हिल्स कुठे आहे, मध्य प्रदेश मध्ये आहे. पण पुष्कर कुठे आहे, राजस्थान मध्ये आहे. तो हे ऑप्शन रॉन्ग आहे. इज इट क्लियर? बट एनीवेज इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड वेयर दे आर लोकेटेड, लाइक महादेव हिल्स, सतमाला हिल्स, नल्लामला हिल्स. तो इंडिया के जितने भी सारे हिल्स हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं ये आपको देखना होता है मैप पे. हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिल्स ऑफ द साउथ इंडिया, हिल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालय, ऐसे कैटेगराइज करके आपको क्या करना होता है, ये याद रखना होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Now let's move on to the next question. This was again a map based question. Majority of the questions could be solved by just reading the map carefully. That is why I opened a map so that we can understand. Let me show it to you on the map of India. अगर आपको समझना ही है exactly महादेव हिल्स कहाँ पर हैं, तो महादेव हिल्स आर लोकेटेड हियर. यहाँ पर महादेव हिल्स हैं और Satpura. पुष्कर जो और ये जो है यहाँ पर है, where Pushkar is located here. So that is why this statement is wrong. Is it clear? Srisailam, yes, of course. Nallamala Hills यहाँ पर है. Srisailam is located here. This is true. और क्या था वहां पर? The other option? Omkareshwar. ओमकारेश्वर. ओमकारेश्वर is in Western Ghat, right? ओमकारेश्वर में ही कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? Anyone remember? हमने डिस्कस किया था. ओमकारेश्वर, origin of which river? ओमकारेश्वर इज इट इन मध्य प्रदेश? आई थिंक नर्मदा रिवर का ओरिजिन शायद ओमकारेश्वर में. Amarkantak. एंड गोदावरी रिवर? Anyways, go and check it out. That is also wrongly matched in the pair. One only. Yes, Sorry. sir. Okay. Now question number 27. Sorry, this is not geography question. We'll discuss the geography question. What I was telling you कि मैप ऑफ इंडिया के अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे बिफोर द एग्जाम, यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. Okay, one more question related to the places in the news. Question number 33. So the area sometimes known as the Golan Heights sometimes appears in the news in the context of the events related to. ये गोलान हाइट्स जो है ये कौन से रीजन से रिलेटेड बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है? ऑप्शन है सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका. गोलान हाइट्स हे नाव ऐकलंय का कधी? गोलान हाइट्स न्यूज़पेपर मध्ये येत असतो कंटिन्युअसली. Golan Heights is located in Palestine, in Israel. So this is located in Middle East. Newspaper में बार बार I ask you to note down the places or regions in the news. तो गोलान हाइट्स ये इजराइल मतलब पैलेस्टीन और इजराइल के दरम्यान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो गोलान हाइट एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. जैसे अभी विच प्लेसेस इज इन द न्यूज दिस ईयर? गजा, the Strait other of places, Hormuz. Strait of Hormuz, very good. Iran also, sir. Then various the air bases of the America in Gulf countries like Al Ubaid air base, etc. Then places of nuclear power plants of Iran, जैसे कि इस्फहान जैसे कुछ places हैं. Armenia. Yes. Armenia. तो ये places in news जो हैं
उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस इज नॉट ऑलरेडी मतलब ऑल्दो इट इज नॉट कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन, बट यू नो न्यूज़पेपर में अगर कोई प्लेस का नाम आ रहा है और वो कहां पर लोकेटेड है ये आपको देखना होता है. व्हेनेवर एनी place is in the news in world page as well as in India, you need to check it out. Is it clear? Yes, sir. Question number 36. Can you see on your screen question number 36? Which of Yes. the above are the tributaries of Godavari? Godavari river, you remember हमने discuss किया था. Godavari Yes, is sir. one of the oldest river of India. Godavari river is located in Himalaya or it is located in Peninsula? Peninsular, sir. Peninsula. Flows from west to east or east to west? Eastern side, sir. कहां से? वेस्ट टू ईस्ट मतलब Yes, नॉर्थ sir. वेस्ट टू West. साउथ ईस्ट फ्लो करती रहती है, राइट? ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट, यू रिमेंबर? सो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव आर द ट्रिब्युटरीज ऑफ द गोदावरी. गोदावरी नदीच्या उपनद्या कुठल्या आहेत? ऑप्शन्स आहेत वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्नार. पेन्नार रिवर ऊपर है क्या यहाँ पर? इफ यू नो, पेन्नार रिवर इज इन साउथ इंडिया. इट इज नॉट लोकेटेड इन यू नो नॉर्थ, मतलब महाराष्ट्र में नहीं है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, right? So 4 is not the correct option, so you can eliminate this option, you can eliminate this option. Now left 1, 2 and 3, 2 and 3 only. So you need to know whether Vanshadhara is a tributary of Godavari or not. Any idea? Is Vanshadhara No, is a sir. tributary of the Godavari? No, sir. No. So answer will be what? Pranita or Pranahita Indravati. and Indravati. Indravati, yes, sir. So 2 and 3 only is the answer of this question. So question related to what? Tributaries of the important rivers of India. Last time in 2025 they have asked the questions related to the Ganga river's tributaries. उसके पहले they have asked questions related to the tributaries of the Indus river. And 2014 में हमने देखा था, 2014 you remember, ब्रह्मपुत्र rivers पूछे गए थे. which among the following rivers are अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था. लोहित, सुबनसिरी, and then they have given again 2 more rivers name. You remember that? तो रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. यू नीड टू स्टडी ऑल द रिवर सिस्टम. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर सिस्टम, यू नीड टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ दैट रिवर. यू नीड टू स्टडी which are the tributaries of the river, which are the left bank tributaries, which are the right bank tributaries, which are the rivers from north to south, south to north, west to eastern, west to east, ईस्ट टू वेस्ट. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और कौन से रिवर पर कौन सा डैम वगैरह है, या कौन सी रिवर कौन से शहर से, मतलब विच सिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, such type of questions are asked with respect to river system. So you need to study the whole system of the river, not just the name of the river, right? And that river flows from which state. म्हणजे ती नदी आहे ते कुठल्या राज्यातून वाहते, कुठल्या कुठल्या राज्यातून वाहते हे देखील तुम्हाला बघणं गरजेचं आहे. यू नीड टू स्टडी द होल रिवर सिस्टम. आप पूरा सिस्टम पढ़ोगे, नॉट जस्ट वन रिवर. इज इट क्लियर? चलिए, now let's move on to next question. Yes, sir. Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? ये forest वाला topic है. Basics of Indian Geography class हमने शुरू किया है. After climate, I will be discussing the soils of India and forest of India. उसके बाद you can able to find out the answer of this question. But anyways, last year भी similar ऐसे question पूछा गया था. किसी को याद है? Last year means 2014. What was the question which was discussed in yesterday's PYQ? In which among the following regions the coral reefs are found? ऐसे क्वेश्चन पूछा था, याद है? Options were Andaman and Nicobar, then Run of Kutch, then Sundarban, then Lakshadweep. ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था. You remember that? Yes. So this time they have asked questions related to the forest. So normally UPSC question पूछता है related to the soil, distribution of soil, distribution of forest, distribution of mineral resources. मिनरल्स मतलब कौन से स्टेट में कौन सी जगह पर मिनरल्स पाए जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से एरिया में पाए जाते हैं. इन 4-5 टॉपिक्स पे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है. वन ऑफ दिस, तो दिस ईयर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. तो विच फॉरेस्ट?
मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, ये तीनों टाइप के फॉरेस्ट किसी एक जगह में पाए जाते हैं। और कहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा है? ऑप्शंस आर नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो कौन से जगह पर मैंग्रोव भी पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं? इंडिया का बस एक ही ऐसा जगह है जहां पर जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, that is Andaman and Nicobar Islands. Why Andaman and Nicobar Islands found the evergreen forest? That we will discuss in Forest of India class in Basics of Geography. Clear? Yes, sir. So answer of this question is Andaman and Nicobar Islands. But why Andaman and Nicobar Islands? We will discuss it in Forest of India class. Because of the Himalayan part, sir. Sorry? मतलब म्हणजे सर ते हिमालयनचं पार्ट आहे म्हणून सर. नाही, हिमालय तर वर आहे ना, खाली आहे, हिमालयाचा पार्ट आहे. पण हिमालयाचा पार्ट आहे म्हणून तिथे एव्हरग्रीन फॉरेस्ट असू शकतात का? फरजाना, डू यू नो why Andaman and Nicobar might be having the evergreen forest? I think Farzana is left. Yes. The reason is that Andaman and Nicobar Islands are located closer to equator. इक्वेटर के पास में है. एंड वी नो इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट होता है, दैट पूरे साल भर में वहां पे बारिश होती है. थ्रू आउट द ईयर देयर इज अ रेनफॉल, एंड दैट इज व्हाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर हैविंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके सर. लावण्या, ओके सर. इक्वेटोरच्या जवळ आहेत ते अंदमान आणि निकोबार. आय थिंक अराउंड आपण बघितलेलं होतं की 10 डिग्री लॅटिट्यूड Yes, sir. 10 degree channel. हा 10 डिग्री चॅनल आहे आणि 10 डिग्री चॅनल आणि इव्हन 8 डिग्री चॅनल पण आहे. म्हणजे इंडियाचा Yes, जर sir. तुम्ही सदर्न जर हे बघितलात, म्हणजे एक्सटेंट जर बघितलात, तर 8 डिग्री पर्यंत भारताचा एक्सटेंट आहे. आणि 8 डिग्री मीन्स इट इज क्लोजर टू इक्वेटर. And since it is closer to equator, Andaman and Nicobar Islands experiences the equatorial type of climate, not like the monsoon type of climate which we found it on the mainland of India. म्हणजे भारताचा जो मेनलँड आहे तिथे मॉन्सून टाइप ऑफ क्लायमेट आहे. पण अंदमान आणि निकोबार आयलंड असा एक एरिया आहे की जिथे पूर्ण वर्षभर पाऊस पडत असतो. डेली रेनफॉल इज देअर. Why daily rainfall? Because equatorial type of climate. So what is the equatorial type of climate? I'll explain to you in the basics of geography class. Okay, sir. Green Climate Fund. Which among the following statement regarding Green Climate Fund is correct? ऐसा एक फंड हमने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था. Which is developed by, which is हाँ, वो तो इंडिया का हो गया. मतलब लोकल बॉडी के लिए ये फंड दिया गया है. बट एक इंटरनेशनल लेवल पर भी फंड चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है अंडर द एजिस ऑफ WTO. यू रिमेंबर? IDF सर. यस. तो वैसा ही यहाँ पर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड इज इन द न्यूज. ये क्यों बनाया गया? इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडॉप्टेशन ऑफ मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट फंड, साक्षी, जो चाइना बना रहा है? Why China is creating that fund? To assist the developing countries for developing the infrastructure in their country. Am I right? लास्ट है, इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ UNEP दिया हुआ है, तो उसके बजाय यहाँ पर क्या आ सकता है? इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ WTO. द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग ऐसे पूछा जा सकता है. Am I right? Yes. Farzana, if you have missed one question about the forest of India, you watched the recording later on. Yes, sir. It was easy for you. सर वहाँ पे गोल्डीलॉक्स जोन का भी क्वेश्चन था ऊपर. गोल्डीलॉक्स जोन, दैट इज अ एस्ट्रोनॉमिक क्वेश्चन. पर ठीक है, फिर भी हम उसको डिस्कस करते हैं. सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सोलर सिस्टम से रिलेटेड पूछा जाता है हर बार. ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं. गोल्डीलॉक्स जोन मतलब ऐसा एक जोन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया था, राइट फरजाना? द टर्म Yes, sir. गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो उस
गोल्डीलॉक्स जोन से रिलेटेड न्यूज बार बार न्यूज़पेपर में आ रही थी, उसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। गोल्डीलॉक फेज अलग है एंड गोल्डीलॉक्स जोन अलग है। गोल्डीलॉक फेज पता है, न्यूज़पेपर में आ रहा था बार बार, Yes, sir. दॅट इज रिलेटेड टू इकॉनॉमी, राईट? गोल्डीलॉक फेज. गोल्डीलॉक फेज म्हणजे काय आपण डिस्कस केले बऱ्याच वेळेस न्यूजपेपर मध्ये. जयेश, यू रिमेंबर? गोल्डीलॉक फेज म्हणजे काय आपण न्यूजपेपर मध्ये वाचलेलं होतं कंटिन्युअसली, बऱ्याच वेळेस आलेल्या होतात. काय असतो गोल्डीलॉक फेज म्हणजे इकॉनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी? सर मीन्स सर मी स्वस्त मला एक्सप्लेन करता येणार सर. Low inflation and high growth. हाँ यस सर, सेम सर. लो इन्फ्लेशन एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? तो यस सर. अब यहाँ पे ये गोल्डीलॉक जोन पूछा है, गोल्डीलॉक फेज नहीं। गोल्डीलॉक जोन, इट इज अ जोन located between two planets, and that zone is called as a zone जिथे म्हणजे पृथ्वीसारखा काय आहे म्हणजे लाइफ को, Habitable zone. यस, हैबिटेबल प्लेस या लाइफ वहां पे ग्रो हो सकती है, उसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन, राइट? So Goldilocks zone, it is the limit of the habitable zone above the surface of the earth. Above the surface of the earth पूछा गया. Second, region inside the earth where the shale gas is available. Shale gas, जहाँ shale gas available है उसे हम Goldilocks zone कहते हैं क्या? या सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, अर्थ के जैसा ही अगर कोई प्लैनेट है अर्थ के बाहर, तो उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। या सर्च फॉर द मेटियोराइट्स कंटेनिंग द प्रीसियस मेटल। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फरजाना? Answer is C, sir. सी, मतलब अर्थ लाइक प्लॅनेट अगर दुसरे कहीं जगह पर है क्या, पृथ्वीसारखाच एखादा दुसरा प्लॅनेट सर्च करत आहेत आपले म्हणजे सायंटिस्ट, ॲस्ट्रॉनॉमिस्ट, जे खगोलशास्त्रज्ञ आहेत, हे भारतासारखं सॉरी म्हणजे पृथ्वीसारखाच जर एखादा कुठला दुसरा प्लॅनेट आहे का जिथे आपल्याला जाऊन सेटल होता येऊ शकतो, आपल्याला जाऊन तिथे हैबिटेशन शुरू करता येऊ शकतात, उसी को हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। सो दैट इज द आंसर। अब ये न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा था, दैट इज व्हाई आज दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स दिस इज करंट अफेयर क्वेश्चन बेस्ड रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। क्लियर? चलो, Yes, sir. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? क्या न्यूज़पेपर में बार बार ऑर्गेनाइजेशन के नाम आते रहते हैं? एंड आई आस्क यू टू गो एंड चेक इट आउट, who are the members of that group, who is a member of that forum? याद है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इज इंडिया मेंबर ऑफ द आसियान? आसियान का मेंबर है क्या Yes, इंडिया? sir. हमने रिसेंटली आई हैव आस्क्ड यू टू गो एंड चेक इट आउट, द मेंबर्स ऑफ द आसियान। देयर आर टोटल 10 मेंबर्स ऑफ द आसियान। क्या इंडिया उस आसियान का मेंबर है? Yes, sir. आर यू श्योर? No. नो। यस श्वेता, व्हाई नो? India is Strategic. not a member of Association of Southeast Asian Nation, but India is an observer member of the Association of Southeast Asia, not the permanent member, right? Yes. तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज मेंबर हैं? सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सार्क का इंडिया मेंबर है फरजाना, नॉट आसियान का मेंबर है। बट यस, इंडिया आसियान के समिट में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, नॉट एज अ मेंबर स्टेट बट एज अ ऑब्जर्वर स्टेट और एज अ पार्टनर स्टेट। सो सेकेंड इज रॉन्ग। अगर सेकेंड रॉन्ग है तो यू कैन एलिमिनेट दिस, यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट दिस। नाउ 3 ओनली, एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ नन ऑफ देम। नन ऑफ देम पूछा गया है। अब यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट, क्या इंडिया ईस्ट एशिया समिट का पार्ट हो सकता है? बिकॉज इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन ईस्ट एशिया, राइट? ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं? चाइना, कोरिया, जापान, दीज आर द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर भी नहीं है। अगर थर्ड रॉन्ग है तो क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ D. नन ऑफ देम। क्लियर? Yes. चलो,
Mekong Ganga Cooperation. The Mekong Ganga Cooperation, an initiative of the 6 countries, which of the following is not a participant country? यहाँ पे कौन मेंबर नहीं है ऐसे पूछा है। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन इस तरीके के न्यूज में आते रहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फोरम्स, लाइक रिसेंटली क्वाड कंट्रीज न्यूज़पेपर में थे। एक नया 4 कंट्री का एक अलग से ग्रुप हमने बनाया हुआ है रिसेंटली। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दैट, वेयर यूएई इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कंट्री, राइट। तो क्वेश्चन पूछा है मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ये जो इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज का, तो उसमें से नीचे में से कौन से कंट्री इज नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन पूछा है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। तो आई थिंक चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, बिकॉज इंडिया पार्ट है उसका, तो चाइना नहीं हो सकता है। तो चाइना का डोमिनेंस ही को निकालने के लिए या चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए ही यह मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन बनाया गया है। तो अगर चाइना नहीं है, अगर आपको ये पता होता न्यूज़पेपर में, अगर आपने उस समय में पढ़ा होता, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स चेक इट आउट, वी कैन एलिमिनेट दिस 4। चाइना है, एंड लेट मी चेक इट आउट विच अदर कंट्री इज नॉट देयर। थाईलैंड भी शायद नहीं हो सकता। बांग्लादेश इज देयर, आई एम श्योर। बांग्लादेश एंड म्यांमार, बिकॉज मैकोंग इज अ रिवर ऑफ म्यांमार। तो 1 और 4 होना, सॉरी चाइना नहीं है ना, ओके। तो वी नीड टू एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। चाइना कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। तो we will eliminate this. We will eliminate this. Now option is 1 only, and 1, 2, and 5. So Mekong Ganga Corporation 1 to Cambodia and Thailand 5. Okay. बांग्लादेश नहीं। Bangladesh Shahi, I know. 1, 2, and 5. Bangladesh is not part of this. Bangladesh नहीं है, तो बांग्लादेश नसेल तर we can eliminate A, we can eliminate C, and we can eliminate D. Okay. So 2, 3, and 4 is the answer of this question. China is a part of Mekong Ganga Corporation? No, sir. China is not a part. तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? If Bangladesh is not there, then we can eliminate this also, we can eliminate this, we can eliminate this also. तो अब यहाँ पे रहता है 2, 3 and 4, but 3 तो चाहे नॉट पूछा है ना, ओके सॉरी, which is नॉट पूछा है, आई एम वेरी सॉरी। तो नॉट है, तो यस, नॉट मीन्स 1 and 3. ऑप्शन है 1 and 3, यस। सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 and 3. सॉरी, एक्झाम मध्ये अशी मिस्टेक होत असते कि वी डोंट Yes, sir. टेक इट आउट, मतलब क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, तो आंसर शुड बी 1 and 3 ओनली। ओके, बट एनीवेज इस तरीके के जो न्यूज में जो है ना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट? न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशन इन द न्यूज। So whenever any such organization is in the news, you will go and check it out who are the members of that organization, who is the member of that forum. Is it clear? Yes, sir. Sure. Okay, question number 69. This is a geography of India question. In a particular region of India, the local people train the roots of living trees into a robust bridges across the stream. मतलब इंडिया का एक ऐसा रीजन है जहां पर वहां के जो लोकल लोग हैं, ट्री के जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ द लिव्हिंग ट्रीज, द रूट्स ऑफ द ट्रीज म्हणजे झाडांची जी मुळे असतात, उसको वह ऐसे ट्रेन करते हैं, इट एक्ट एज अ ब्रिज। उस रूट्स का इस्तेमाल करके ब्रिज बनाया जाता है, पूल बनवलं जातो अक्रॉस द स्ट्रीम। म्हणजे तिथे जे काही नद्या असतात, छोट्या छोट्या ज्या नद्या असतात, त्या नद्यांना क्रॉस करण्यासाठी झाडांच्या मुळांचा वापर ब्रिज बनवण्यासाठी केला जातो भारताच्या एका भागामध्ये। As the time passes, these bridges become very stronger. So these is a unique living root bridges are found in. तो ऐसे ये लिविंग रूट ब्रिजेस कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस आर मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड तमिलनाडु। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेघालय। मेघालय में वहां के जो लोग हैं क्या करते हैं, वहां के ट्रीज को, ट्रीज के रूट्स होते हैं, उसको इस तरीके से
ट्रेन करते हैं कि दे एक्ट एज अ ब्रिजेस फॉर क्रॉसिंग द रिवर स्ट्रीम्स, राइट? चेक इट आउट इन, वी विल चेक इट आउट इन दी गूगल. As I told you कि मेघालय इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया. तो जब भी आप IAS बनोगे या जब भी आप कोई भी सर्विस ज्वाइन करोगे, तो यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मेघालय एज अ पार्ट ऑफ भारत दर्शन. तो वहां पर ये इस तरीके के जो ट्रीज के जो रूट्स होते हैं ना, वो इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग ट्री ब्रिजेस. कैन यू सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन? Yes, Yes, sir. इमेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर? So these are the examples that how the tree's roots are, trained in a such a way that it can be used as a bridge to cross the small streams in Meghalaya. मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है. Can you see it on your screen? Is it visible? Yes, sir. So ये क्वेश्चन पूछा गया. ऐसे कुछ यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है. तो such type of questions could be solved by only reading NCERT or by reading the newspaper or by your observation. अगर आप कहीं घूमने के लिए चले गए, आपको अगर ऐसा कोई यूनिक फीचर दिखाई देता है, तो you can find out the answer of this question. Is it clear? Yes, sir. चलो, now let's move on to next question. Question number 70. Again, the core geography question. Tides are of tides मतलब क्या? फरजाना, you remember high tide, low tide हमने डिस्कस किया था. Have I discussed this topic in fundamentals in physical geography? फरजाना, yes low sir. tide, high tide, yes or no? सर ये नहीं, हमने नहीं किया ये टाइड वाला. नहीं किया. ठीक है, I'll take it out. टाइड वाला टॉपिक है. भरती आणि ओहोटी. भरती कसे होती, ओहोटी कसे होते, that we will discuss. Tides occur in oceans and seas due to which among the following? भरती आणि ओहोटी कशी होते, हा प्रश्न विचारलेला आहे. शाळेमध्ये असताना आपण स्टडी केले. व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ भरती आणि ओहोटी म्हणजे काय माहितीये का तुम्हाला? समुद्राचा जो पाणी आहे, काही काळासाठी त्याचा पाण्याचा जो लेवल है तो बढ़त असतो आणि पाण्याचा लेवल कमी होत असतो. तो उसकी वजह क्या है, पैसे पूछा गया. Is it because of the gravitational force of the sun? Yes, gravitational force of the sun is also responsible for that. Gravitational force of the moon is also responsible for that. And the centrifugal force of the earth, it is also responsible. Thumb rule है यहाँ पे. Thumb rule क्या है? Even if you didn't know the answer of this question, but by following the thumb rule, 1, 2, 3 जब ऑप्शन दिया जाता है, most of the time 1, 2, 3 is the correct answer of that question. So answer of this question is 1, 2, 3. Now what is this? How the gravitational force of the sun, how the gravitational force of the moon, and what is the centrifugal force, that we will discuss in basics of geography class. तो ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन. क्लियर? Yes, sir. चलो, question number 72. Which above the following states do tropical wet evergreen forest occur? Again the question of same, forest of India. फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन पूछा गया, ऊपर में से कौन से स्टेट्स में वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, से पूछा गया है. सो कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था. डू यू रिमेंबर विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल? सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और द कोस्टल एरियाज? कौन से एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है? कोस्टल एरिया. कोस्टल एरियाज में. और and northeast India as well, right? Because वहाँ पे हिमालयाज है. Because of Himalaya acts as a barrier, there is a upward movement of the winds which are coming to India in the month of June, July, August, September. तो वहाँ पे बारिश होती है. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर चाहिए, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वी नीड अ मोर रेनफॉल, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अरुणाचल प्रदेश में. यस, अरुणाचल प्रदेश एवरग्रीन फॉरेस्ट आर देयर. हिमाचल प्रदेश में नहीं है. मिजोरम में यस. द आंसर शुड बी 1 and 3. हिमाचल प्रदेश we do not find the evergreen forest. Confirm it. 1, 2, 3 भी हो सकता है. Answer could be 1, 2, 3 or answer could be 1 and 3 only. 1 and 3. 1 and 3. हिमाचल प्रदेश में इसलिए नहीं है because हिमाचल प्रदेश is located away from the
ocean, right? Let me show it you on the map of the India. Can you see the map of India on your screen? कल हमने डिस्कस किया था ओशन करंट्स कैसे आते हैं, मतलब विंड्स कैसे आते हैं. विंड्स कम्स इन दिस डायरेक्शन, राइट, यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है. देयर इज हाई रेनफॉल इन दिस जोन बिकॉज वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज ए बैरियर, सो देयर इज हाई रेनफॉल. देन यहाँ से विंड्स चले जाते हैं बे ऑफ बंगाल से, तो एंड यहाँ से चले जाते हैं, तो यहाँ जहाँ जाते हैं तो यहाँ पर हिमालयाज है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिमालयाज देयर इज अ हाई रेनफॉल इन दिस जोन. एंड यहाँ पर भी है, हियर ऑल्सो हिमालयाज देयर, बट जब तक ये विंड्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं हिमाचल तक, देन दे मॉइस्चर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है. बिकॉज दिस हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड वेल अवे फ्रॉम द ओशन, ओशन से काफी दूर है. इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बट इट इज नॉट एज हाई एज इट इज फाउंड इन दिस रीजन. तो मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, they are having the evergreen forest. But the other part of the world, majority of the India का जो हिस्सा है, here we do find the deciduous forest. deciduous म्हणजे काय? deciduous means पानझडी वने भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सापडतात. In mainland we do find the deciduous forest, but in this part we found the the evergreen forest because amount of rainfall is high here. Clear? हाँ. चल. So answer of this question is 1 and 3, that is Arunachal Pradesh and Mizoram. So Himachal Pradesh is the not correct answer. तो concept अगर आपको समझ में आ जाएगा, you will find out answer of this question. So I am going to discuss the distribution of the rainfall in India and distribution of the various forests in India based on the rainfall. Because if you understand the concept कि इंडिया में कौन सी जगह पर कितनी बारिश होती है और वैसे ही क्यों होती है, तो उस एरिया में कौन से फॉरेस्ट है, that also you can understand. Question number 78 again, क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉरेस्ट. 2015 के एग्जाम में फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सो इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट इज अ टीक, अ डॉमिनंट ट्री स्पेसिस. तो कौन से फॉरेस्ट में टीक नावाचं ट्री मोठ्या प्रमाणामध्ये सापडतात. टीक शब्द ऐकले कधी? टीक, टीक इज यूज फॉर मेकिंग फर्निचर. इट्स अ इम्पॉर्टंट द ट्री. अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता, यू विल चेक इट आउट इन हिंदी. टीक, लेट मी चेक इट आउट. टीक का हिंदी अनुवाद क्या दिया गया है? सागौन, सागवान नाव ऐकले कधी? सागवान हा शब्द ऐकलाय का कधी? सागवान ट्री कशासाठी वापरला जातो? Yes. सागवान या ट्रीचा वापर कशासाठी केला जातो? फर्निचर बनवण्यासाठी, राईट. तो प्रश्न विचारलेला की भारतामध्ये कुठल्या फॉरेस्ट मध्ये सागवानचे ट्री सापडले जातात किंवा टीकचे ट्री सापडले जातात. सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट and temperate forest and the grasslands. So this question is asked to you. C. So answer is yes, tropical thorns scrub forest. No, I don't think so. Sir, I think a tropical moist deciduous. Moist deciduous, yes, deciduous forest है सागवान, yes, and that is found in South India, तो as well as नॉर्थ में भी पाया जाता है. आंसर इज ए करेक्ट. बट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेस्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन से फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, दैट ऑल्सो यू नीड टू स्टडी. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 77, वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन. Which one of the following countries of Southwest Asia does not open out into Mediterranean Sea? Last year also there was similar such question, right? Turkey is located between which two sea? You remember? 2014 में question था. Yes, It is sir. located between which two seas? Mediterranean Sea and Black Sea was the answer of that question, right? Yes, So sir. last year जब Mediterranean Sea से related question पूछा गया था तुर्की से related, तो you were supposed to study about it. तो यहाँ पे पूछा कि कौन से कंट्री मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होते हैं? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान एंड इजराइल. तो अगर हम देखेंगे इजराइल ओपन्स टू मेडिटेरेनियन सी, लेबनान ऑल्सो आई थिंक ओपन्स टू मेडिटेरेनियन सी, शायद सीरिया नहीं है.
Jordan also opens to the Mediterranean Sea. I have asked you to go and check it out where these countries are located in this conflict. Syria, Jordan, Lebanon, Israel कहाँ पर located हैं? ऐसे मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बार बताया है न्यूज़पेपर क्लास के दौरान कि go and check it out. You remember that? So answer of this question is Syria. Syria ये interlocked country है. It does not open to sea. That is why the answer is A. Question number 80. Again, very interesting question. I want Farzana you to answer this question because you have attended fundamentals and physical geography class. Question है okay. I think answers is Jordan, not Syria. Syria opens to the Mediterranean Sea. Lebanon also open to the Mediterranean Sea. Israel also open to the Mediterranean Sea. Syria is just located above the Lebanon. Yes, sir. Okay, तो जॉर्डन राइट में है, तो जॉर्डन डज नॉट ओपन इनटू द मेडिटेरेनियन सी. ओके फाइन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच डे इज मोर और लेस सन. द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विथ सी ब्रीज. As the sun climbs high in the sky, the heat mounts up, dark clouds are formed, the rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. तो एक ऐसा जगह है जहां पर यू नो एवरी डे मतलब हर दिन सेम है, मतलब देर इज नो एनी सीजन्स, लाइक देर इज नो विंटर सीजन, रेनी सीजन और समर सीजन लाइक इंडिया. पूरे साल भर में वहां सेम क्लाइमेट होता है. क्या क्लाइमेट होता है? दैट द मॉर्निंग इज वेरी क्लियर विथ ब्राइट सी ब्रीज, देन सन क्लाइम्स अप, सन टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाता है दोपहर तक, और क्लाउड बनते हैं आफ्टरनून तक. फिर बारिश आती है विथ थंडर, जोर से बारिश आती है कुछ समय के लिए, मतलब नॉट फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, लाइक ओनली फॉर अराउंड हाफ एन आवर और मे बी अराउंड फॉर 1 आवर बारिश होती है. फिर उसके बाद एवरीथिंग इज ओके. तो ये कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वेश्चन पूछा गया. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज डिस्क्राइब्ड इन अबव पैसेज? सवन्ना, इक्वेटोरियल, मॉनसून, मेडिटेरेनियन. मॉनसून तो नहीं है. क्या इंडिया में पूरे साल भर सेम सीजन होता है, सेम क्लाइमेट होता है? नो, मॉनसून नहीं है. मेडिटेरेनियन भी नहीं होगा फरजाना, एम आई राइट? बिकॉज वी नो मेडिटेरेनियन में देयर इज विंटर रेनफॉल इन मेडिटेरेनियन. यू रिमेंबर? Yes, sir. Because of विंटर western. वेल हाँ, बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज, यू राइट. विंटर रेनफॉल. मॉनसून भी नहीं है. सवन्ना इज ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज वी हैव सीन सवन्ना में बारिश ज्यादा नहीं होती. रिमेंबर दैट? Yes, sir. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटर, राइट. इंडिया में इक्वेटर के नजदीक कौन सा रीजन है? अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. दैट इज अंडमान एंड निकोबार इज क्लोजर टू इक्वेटर. दैट इज वाई अंडमान एंड निकोबार के सदर्न आइलैंड्स में इस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द इंडिया और द मेनलैंड ऑफ इंडिया experiences the monsoon type of climate. Understood, Farzana? Yes, sir. So answer of this question is equatorial type of climate. It was an easy question for those students who have studied the GC Lyon. Am I right? Yes, sir. It is directly from the GC Lyon. Yes, it is directly taken from the GC Lyon. Many questions are directly taken from GC Lyon and 11th standard NCERT. That is why we study that. और ये दो ही टॉपिक को बार बार कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है, so that अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो you can able to find out the answer of this question. Clear? Yes, sir. Fine. So these are all the questions of the geography in 2015. We'll stop it here. We'll continue tomorrow. Tomorrow we will discuss 2016 question paper of geography. तो आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. करेक्ट? Yes, sir. तो अब हम कोर ज्योग्राफी बेसिक ज्योग्राफी क्लास कर रहे हैं. तो व्हेन यू आर स्टडिंग द बेसिक ज्योग्राफी क्लास, तो यू गेट एन आइडिया कि कौन सी चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए while we are reading the 11th standard NCERT and while we are reading the GC Lyon.
ठीक है. So आप दोस्त who have applied for this year's prelims exam, अगर आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट अगर हो गया है तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग जीसी लियोंग एंड 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ रिवीजन. तो मुझे लगता है शायद आप लोगों का पॉलिटी रिवीजन अभी चल रहा है, राइट? सारे टॉपिक्स नहीं हुए हैं ना पॉलिटी के. तो वंस यू फिनिश विद द पॉलिटी रिवीजन you can go with the geography. Then geography of GC Leong and 11th standard NCERT, that is sufficient for you. ये दोनों बस आपको पढ़ना है, but revision करते वक्त focus more on the type of the questions or the areas on which UPSC is asking the question in prelims exam. Is it clear? Yes, sir.